بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بہترین حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ حاملین قرآن، قرآن جاننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کا گیان رکھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے وہ کیسے ہوں گے، ان کا درجہ آخرت میں کیسا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں حملۃ القرآن، حاملین قرآن، قرآن جو اپنے سینوں میں اٹھائے ہوں گے، یعنی قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور حافظین قرآن وغیرہ، عرفاء اہل الجنہ، اہل جنت میں وہ عارف ترین لوگ ہوں گے، عارفین ہوں گے۔ جی ہاں، یہ بہترین حدیث ہے اصول کافی میں۔ تو چلتے ہیں، آج کا درس جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا، وہ حروف کے جو سائلنٹ رہتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ان کی دو قسمیں۔ ایک وہ ہے کہ جو ہمیشہ نہیں پڑھے جائیں گے، وہ چار ہیں، واو ہے، الف ہے، لام ہے، یا ہے، اور ان کی داستان، ان کے جو ہے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور وہ چار قسمیں تھیں، ہم نے بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اب دوسرا مرحلہ ہے وہ حروف کے جو لکھے جاتے ہیں مگر کبھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھے جاتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی۔ ایک ان حروف کو کہ جو آپ کبھی پڑھیں گے اور کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے، لہٰذا آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے جو تیسری قسم ہم نے یہاں اشارہ اور کنایہ میں لکھا تھا، دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں، لہٰذا پھر ایک دفعہ ریورس کر رہا ہوں۔ آپ حروف مدی تو جانتے ہی ہیں، حروف مدی کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے اگر فتحہ ہو۔ جی ہاں، حروف مدی کس کو کہتے ہیں؟ اگر واو، یہ نہیں لکھ رہا ہے، واو، اور واو سے پہلے اگر کوئی حرف ہو اور اس پہ ضمہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ لام ہے، یہ الف ہے، لا، تو یہ الف مدی ہوتا ہے۔ واو ہے، واو سے پہلے اگر ضمہ ہو، فرض کیجئے یہ نون ہے اور واو ہے، نون، ٹھیک ہے، تو یہ نون جو ہے یہ واو مدی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اسی طریقے سے یا ہے، اور یا سے پہلے کوئی حرف ہے، فرض کیجئے بے ہے یا فے ہے، تو اس کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا مدی۔ جی ہاں، تین ہمارے پاس حروف مدی تھے، ایک الف مدی، واو مدی، یا مدی۔ کیا مطلب؟ جب الف سے پہلے فتحہ ہو اور واو سے پہلے ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو۔ ہاں، آج گفتگو یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے تو اب سنیے، کہتے ہیں کہ اگر حروف مدی کے بعد ایک حمزہ وصل یا الف، ٹھیک ہے، الف سمجھ لیجئے یہ حمزہ وصل ایک ہی بات ہے، اگر وہ الف ہو تو وہ الف پڑھا جائے گا بھی اور پڑھا نہیں بھی جائے گا۔ جی ہاں، کب پڑھا جائے گا؟ یہ جو ہے اس طریقے سے الف مدی، واو مدی، یا مدی، تو اس کا الف، واو اور یا پڑھا جائے گا جب آپ وقف کریں گے، ٹھہریں گے، رک جائیں گے، نہیں آپ ملا رہے ہیں اس حرف کو دوسرے حرف کے ذریعے، میں بھی مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی، تو اس وقت آپ ان الف مدی، واو مدی اور یا مدی تینوں کو نہیں پڑھیں گے۔ بات میری سمجھ گئے؟ میں مثال دوں، بہت ایزی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تین مثالیں یہاں ہم دیں گے، ایک الف مدی، ایک واو مدی، اور ایک جو ہے وہ یا مدی کی۔ فرض کیجئے قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، دیکھیے یہ ہا اور آ اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر فتح ہے تو ہا، اور یہ دال ہے، جی ہاں، اور دال کے اوپر فتح ہے، اور یہاں پر ایک الف ہے، یہاں پر ایک الف ہے، یہ الف چونکہ اس سے پہلے فتح ہے تو اس کو الف مدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہے الوعدو، الوعدو، جی ہاں، یہ قرآن مجید اس طریقے سے ہم دھیرے دھیرے پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ دیکھیے ھذا الوعد، لہٰذا یہاں پر اگر ہم اس کو پڑھیں گے ملا کر کے، یعنی الوعد، یہ فرض کیجئے الگ ہے مثال کے طور پر، تو اس جملے کو اس جملے سے ملانا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟
हाज़ल वादो, तो इस जगह पर ये जो अलिफ है ये साइलेंट हो जाएगा, ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दी है। बात मेरी समझ गए? ये हमज़ा वसल है जो मिलाने के लिए, लिहाजा हमज़ा वसल तो पढ़ा नहीं जाएगा, इसका कायदा पहले हम बयान कर चुके हैं। आज इसकी बात है। देखिए अलिफ मद्दी वो है कि जिससे पहले फतहा हो और वो साकिन हो, ठीक है। अगर मिलाते हैं किसी के साथ तो ये अलिफ मद्दी पढ़ा नहीं जाएगा जब आप इसको मिलाएंगे, लेकिन जब रुकेंगे स्टॉप करेंगे तब पढ़ा जाएगा, ये खींचा जाएगा। कैसे? देखिए हाज़ा, तो जब ज़ा हम कह रहे हैं तो ज़ा कह के लंबा हमने खींचा ना, आ, तो ये पढ़ा जा रहा है हाज़ा। लेकिन अगर इस जगह पर आप अलिफ मद्दी को मिला रहे हैं ज़ाल को लाम से, तो फिर अलिफ मद्दी को नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से कुरान में एक जुमला है, ये फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक मैं बहुत इजी लिख दूँ बड़ा बड़ा करके, ये फ़ा है, ठीक है, और ये या है, इस पे कसरा है, तो ये क्या होगा? फ़ी। और कुरान मजीद में यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, ये साकिन है, फर्ज कीजिए, इब्तिगा, अलिफ पे कसरा है और बे साकिन है इब, और ते पे कसरा है इब्ती, और गे और अलिफ है, यानी गैन और अलिफ है, इस तरीके से। तो इस जगह पर देखिए मैं बहुत ही इजी आपको समझाऊं कि या और या से पहले चूंकि कसरा है तो इस या को याए मद्दी कहते हैं। लिहाजा जब भी इस फी और इब्तिगा को आप मिलाएंगे तो ये फे बे से मिल जाएगा और यहाँ पर ये हमज़ा वसल हो जाएगा। इस तरीके से हमज़ा वसल जो पढ़ा नहीं जाता है, लिहाजा इसकी बात आज हो रही है कि ये वाला यानी या मद्दी, यानी या से पहले कसरा है या मद्दी, अगर मिलाते हैं किसी जुमले से तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? फिब्तिगा, यानी फे इस बे से मिल जा रहा है, ये फे बे के साथ मिल रहा है, फिब्तिगा, और यहाँ पर ये या नहीं पढ़ा जा रहा है लेकिन लिखा ज़रूर जाएगा। इसको हुरूफ नाख्वाना यानी साइलेंट रहने वाला, लिखने वाला मगर पढ़ नहीं सकते हैं, न पढ़ने वाला ये या है, ठीक है, फिब्तिगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम रुकें और इसको वसल ना करें, फ़ी के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए हम कुरान पढ़ रहे हैं और हमारी सांस जो है वो नहीं ले पा रहे, इज़्तिरारी सूरत में हम यहाँ रुक सकते हैं। ये भी मैं बता दूँ आपको, इन जगहों पर आसानी के साथ आप रोक नहीं सकते हैं, मगर ये कि इज़्तिरार हो, फ़र्ज़ कीजिए बहुत इमरजेंसी काम आ गया हो, आपको जाना हो, या आपकी नफस और सांस यहाँ तक नहीं खींच पा रहा है, लिहाजा आपको यहाँ पर वक़्फ़ करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? फिर उस वक्त आप इसको पढ़ेंगे, यानी वक़्फ़ के वक्त, वक़्फ़ के मतलब ठहरना, वक़्फ़ के वक्त, तोड़ने के वक्त, दो को अलग अलग बख्श करने के वक्त आप इसको पढ़ेंगे या मद्दी को। जैसे यहाँ पर हादा अलवादो, फिर अलग से इसके ऊपर हमज़ा वसल के ऊपर जो है हम लोग फतहा ज़म्मा कसरा लाएंगे, उसको देखते हुए कि उसका तीसरा हर्फ क्या है, वो गुज़िश्ता कल बयान कर चुके। यहाँ भी इस तरीके से फ़िब्तिगा, लेकिन अगर रुकेंगे फ़ी इब्तिगा। क्यों इब्तिगा? इसलिए कि अलिफ एक, बा दो, ता तीन, तीसरा हर्फ चूंकि कसरा है इस यहाँ भी कसरा आएगा। अगर ठहरेंगे तो फ़ी इब्तिगा पढ़ेंगे और नहीं ठहरेंगे तो ये पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि फ़िब्तिगा। जी हाँ, इसी तरीके से कुरान मजीद में तीसरा जो जुमला है या मिसाल दूँ वो वाव है, वाव से पहले ज़म्मा है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में है ज़ुल अर्शे, ज़ुल अर्शे। जी हाँ, देखिए ये दाल है, दाल के ऊपर ज़म्मा है और ये वाव है। तो इस वाव हमने कहा था वाव कभी भी उससे पहले ज़म्मा हो तो ये वाव मद्दी होता है, यानी खींच के ज़ू। जी हाँ, तो अल अर्शे यहाँ पर है, शीन का नुक्ता बहरहाल हमने इस तरीके से लिखा बच्चों को समझाने के लिए, 3 नुक्ता ऐसे, ठीक है। ज़ुल अर्शे, जब हम इसको ज़ू को और अल अर्श को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये वाव पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर हमज़ा भी पढ़ा नहीं जाएगा, ये हमज़ा वसल है। यहाँ कैसे पढ़ेंगे? ये ज़ाल को लाम से मिला देंगे इस तरीके से, ज़ुल अर्श
शे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, वाव पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर जू कह के आप रुकेंगे इस्तरारी सूरत में, यानी इमरजेंसी सूरत में वक्फ करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? जू अल अर्शे। ये बात आज समझ में आ गई। अब जो है वो चौथा कायदा या आप कहिए किस्म है हुरूफे नाखवाना, जो कभी पढ़ेंगे और कभी नहीं पढ़ेंगे। हुरूफ शम्सी कितने हैं और कौन कौन से हुरूफ को हुरूफ शम्सी कहते हैं? कैसे समझेंगे कि हम हुरूफ शम्सी हैं? और कौन कौन से हुरूफ कमरी है शम्सी? इसका मतलब क्या है पहले ये बताइए सर कि शम्सी का मतलब क्या? देखिए शम्स ये शीन मीम और सीन, शम्स। शम्स के माने है सूरज, फारसी में खुर्शीद, उर्दू में सूरज और नेपाली में सूर्य। शम्स, शम्सी, शम्सी अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब खुर्शीदी, सूरज वाले हुरूफ। जी ये हुरूफ शम्सी। हुरूफ की दो किस्म है, हुरूफ की दो किस्म है, एक शम्सी और एक कमरी। यह है काफ दो नुक्ते वाला, और ये रा मीम, और ये रा और ये कमरी। कमर के माने हैं चांद के। जी हाँ, शम्स के माने सूरज, लिहाजा हुरूफ शम्सी यानी खुर्शीदी हुरूफ, हुरूफ कमरी यानी चांद वाले हुरूफ। 14 हुरूफ हैं जिनको हुरूफ शम्सी कहते हैं। एक ता है और एक सा। जी हाँ, तो ता सा, उसके बाद दाल है, दाल है, रा है, जा भी हुरूफे शम्सी में से है। इसी तरीके से सीन है हुरूफे शम्सी में से, शीन है हुरूफे शम्सी में से। फिर आपको बताएंगे हम क्यों इसको हम कैटेगरी को आपसे बयान कर रहे हैं कि हुरूफ शम्सी है, इसका काम क्या है बताएंगे, किस काम के लिए आएगा। हुरूफ शम्सी में से शीन है, उसके बाद स्वाद है, उसके बाद ज़ाद है, स्वाद ज़ाद। जी हाँ, उसके बाद ता है, उसके बाद वा है, ता और वा। ये भी हुरूफ शम्सी में से। बस 2 हर्फ रह गए हैं, बहुत ही इजी है, एक लाम है और एक नून है। इसको हुरूफ शम्सी कहते हैं। बाकी जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर अलिफ है, बे है, जीम है, हा है, खा है, वो जो बाकी रह जाते हैं इस 14 के अलावा वो हुरूफ कमरी हैं, यानी चांद वाले हुरूफ। इस तरीके से समझ लें, यानी हुरूफ जो माही हुरूफ है फारसी में जिसको बोलेंगे। क्यों हमने कहा है, देखिए अब ग्रामर और कायदा आपको समझा रहे हैं, हतमन आपने लिख लिया होगा। हुरूफ शम्सी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो इसका लाम पढ़ा नहीं जाता है, कभी कभी दोनों नहीं पढ़ा जाएगा मगर लिखा जाएगा। जी हाँ, और अगर चांद वाले, अगर इससे पहले अलिफ लाम आ जाए बच्चों, यानी हुरूफे कमरी से पहले, तो हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो लाम और अलिफ पढ़ा जाएगा, लेकिन शम्सी से पहले अगर आ जाए पढ़ा नहीं जाएगा। एक एक की मिसाल देते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। या जितना भी सीन की मिसाल फ़र्ज़ कीजिए, अलिफ और लाम है ये अल, जी हाँ, और ये सीन है, ये सीन हुरूफ शम्सी में से है, इसके ऊपर तशदीद है, ठीक है। तो अल सा ला मो, ये ला और मीम पे मो, अस्सलामो यहाँ पढ़ेंगे, अब अल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हुरूफ शम्सी में से, सीन हुरूफ शम्सी में से है, लिहाजा जब भी हुरूफ शम्सी से पहले अलिफ और लाम आ गया तो ये अलिफ सीन से मिल जाएगा। जी हाँ, फ़र्ज़ कीजिए एक दूसरी मिसाल, जो अलिफ भी और लाम दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, यहाँ पर आप वाव लेकर आइए और वाव के ऊपर फताइए, कोई भी फ़ी लेकर आइए, जो भी कुछ है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? वस्सलामो,
कहते हैं ना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो वस्सलाम आपने देखा अलिफ और लाम नहीं पढ़ा गया। क्या मतलब? यानी अलिफ और लाम नाखवाना होता है, पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट रहेगा जब हुरूफ शमसी से पहले आ जाए। लिहाजा हुरूफ शमसी का हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वरना कुरान में आएगा तो आप पढ़ेंगे वल सलामो, गलत हो जाएगा, बल्कि आपको क्या पढ़ना है? वस्सलामो। जी हाँ, ये सीन की मिसाल है। इसी तरीके से आप जो है शीन की मिसाल दीजिए। जब ईद की नमाज होती है तो आप पढ़ते हैं ना वशम्स। देखिए ये वाव है, अलिफ और लाम है, अब यहाँ शीन है और ये मीम हमने लिखा है, और फिर वशम्स। जी हाँ, इसके ऊपर तशदीद है। ये अगर हुरूफ शमसी से पहले लाम और अलिफ आ जाता है और उससे पहले कोई जो है वो हर्फ यानी हरकत वाला होता है और ये साकिन होता है, तो दोनों पढ़े नहीं जाएंगे। जैसे वशम्स, वशम्स यहाँ देखिएगा वशम्स। जी हाँ, ये सीन और शीन की मिसाल। या फर्ज कीजिए जैसे हमने कहा था ता है, तो कुरान मजीद में है अत-तौबा, ये ता है, ये अलिफ है, अत-तौबतुन। जी हाँ, अत-तौबतुन। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अल तौबा तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, चूंकि ता जो है हुरूफ शमसी में से है और उससे पहले लाम आया है। अल तौबा तो नहीं पढ़ सकते, अत-तौबा तो पढ़ेंगे, लाम साइलेंट रहेगा। इसी तरीके से एक जो है वो ता की मिसाल दी हमने, सीन की मिसाल दी, शीन की मिसाल दी। अब फर्ज कीजिए स्वाद की मिसाल देते हैं। ये अलिफ और लाम है, ये स्वात है, ये रा है, अलिफ है, ते। जी ये स्वात के नीचे कसरा है, तो क्या पढ़ेंगे? अस्सिरात, अस्सिरात। ये देखिए अलिफ और ये स्वाद है, अस्सिरात। आप नहीं पढ़ सकते अल सिरात, अल सिरात पढ़ेंगे तो अरब फौरन समझ जाएगा कि आपको अरबी नहीं आती है। अस्सिरात पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फर्ज कीजिए इसके शुरू में अगर वाव आ जाए और ये साकिन हो जाए तो ये अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ सकते। वस्सिरात, वस्सिरात। बात मेरी समझ गए? इसी तरीके से किसी की भी मिसाल लीजिए, दाल है, जाल है, मसलन कुरान की मिसाल है तो मैं कह रहा हूँ अज़्ज़ाकिरीन, अज़्ज़ाकिरीना। जी हाँ, ये काफ है, अज़्ज़ाकिरीन। ये अल ज़ाकिरीन नहीं पढ़ सकते हैं, अल ज़ाकिरीन नहीं पढ़ सकते, बल्कि क्या पढ़ेंगे? अज़्ज़ाकिरीन, अज़्ज़ाकिरीन। क्यों? इसलिए कि ज़ाल जो है वो हुरूफ शमसी में से है। जी हाँ, चूँकि वक्त बहुत ही कम रह जाता है, लिहाजा मैं मिसाल देता हूँ कब पढ़ा जाएगा, जब हुरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम आ जाए। देखिए हुरूफ कमरी की दो एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ऐन जो है वो हुरूफ कमरी में से है, इसकी मिसाल अल, अल, आ, ला, मी, ना, अल आलमीना। जी हाँ, यहाँ पर देखिए अल आलमीना, लाम पढ़ा जा रहा है। जी हाँ, इससे पहले अगर अलिफ साइलेंट रहे और फर्ज कीजिए वाव आ जाए या कोई भी फिल आलमीन या कोई भी वाव, तो क्या पढ़ेंगे? वल आलमीन। आप ऐन पे नहीं ले जा सकते, वाव को ऐन से नहीं मिला सकते वो शम्स की तरह। यहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा। क्यों? इसलिए कि ऐन हुरूफ शमसी में से नहीं है। तो सवाल, हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आए तो ये लाम पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कमरी से पहले आ जाए तो लाम पढ़ा जाएगा। या दूसरी मिसाल देते हैं हुरूफ कमरी की। फर्ज कीजिए काफ है, काफ से कमर है ना, तो आप लिखिए वल कामर, वल, ये वाव और लाम, कामर, वल कमर। जी हाँ, कुरान में है वशम्स वद्दुहा, इस तरीके से वल कमर। जी हाँ, तो काफ चूंकि हुरूफ कमरी में से है, लिहाजा उससे पहले अगर अलिफ लाम आता है तो ये लाम पढ़ा जाएगा, वल, वल, वल कमर। लेकिन अगर ये हुरूफ शमसी में से होता तो वशम्स जैसे हम पढ़ रहे थे, लाम नहीं पढ़ा जाता। इसी तरीके से एक मिसाल और दे देते हैं, बस आपकी ज़हमत ख़त्म। कुरान में आप तलाश कीजिए। देखिए एक हमने कहा था कि
اس کے حروف شمسی کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف قمری. فرض یہ ہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کو, تو ہم پڑھتے ہیں اس ٹائم الف اور لام ساکن, ال ہا, ہا اور میم ساکن ہے تو ہم دال پیش دو, الحمدو, الحمدو پڑھا نا, الحمدو. ہم نے احمدو نہیں پڑھا, پڑھ نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, معنی ہی نہیں آئے گا. ال پڑھنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہا ہے نا, یہ مکمل ہا لکھ کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ہا حروف قمری میں سے ہے. آخری جو قسم ہے, آج ہم نے اس کو مکمل کر لی, آخری جو قسم ہے اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں. حروف ناخوانا جب پڑھیں گے اور نہیں پڑھیں گے. دیکھیے ایک الف ہے جس کے اوپر اس طریقے سے گول ہے اور وہ جو ہے وہ اندر سے خالی ہے, تو یہ جب ملائیں گے کسی دوسرے سے تو نہیں پڑھا جائے گا, اور اگر وقف کریں گے, رکیں گے وہاں پر تو پڑھا جائے گا. مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرض کیجئے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا فرمایا, انا ابن حیدر. جی کیا فرمایا, انا ابن حیدر. جی ہاں, تو اس جگہ پر غور کیجئے, الف نون اور الف انا, اور یہ جو ابن ہے نا اس کو آپ غور سے دیکھیے, نب نو پڑھیں گے جب آپ ملائیں گے, اس دونوں الف کو آپ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی الف کی مثال یہاں پر ہے. انب نو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے اس طریقے سے, نب نو, یہاں ملا رہے ہیں. لیکن اگر نہیں ملائیں گے اور آپ جو ہے اسٹاپ کریں گے انا کے اوپر, تو اس وقت آپ کو انا پڑھنا پڑے گا, یہ والا الف پڑھنا پڑے گا, انا. پھر آپ کہیے ابنو, اس وقت جو ہے آپ کو یہ الف لانا پڑے گا, انا ابنو حیدر. جب آپ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے, انا ابنو حیدر, میں حیدر کا بیٹا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ملائیں گے اس کو اور فاصلہ نہیں رکھیں گے تو اب آپ کو اس کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ انبنو, اس الف کو بھی آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت. انبنو, یہ نون بے سے مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہے, الف اس کے اوپر جزم کی علامت ہے, ایک گول تو خالی یا جو بھی کہہ لیجئے اس کی علامت ہے. لہٰذا قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں, قواریرم من فضت, تو قواریرم را وہاں پر ہے, قواریرا, قواریرا من فضت, تو یہاں پر الف کو آپ نہیں پڑھ سکتے. قواریرم, را جو ہے وہ میم سے مل جائے گا, را جو ہے وہ میم سے مل جائے گا, الف جو ہے یہاں پر ناخوانا ہے. لیکن اگر رکیں گے قواریرا, پھر آپ پڑھیں گے مد کے ذریعے سے, اس کو مد کر دیں گے قواریرا. جی ہاں, تو یہ حروف ناخوانا ہے, اس کی بحث آج جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. پھر انشاءاللہ آگے دوسری بحث کریں گے. والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.